So today we are going to do this reading. Menu participating copyright menu. The heading is Music the Panacea. What is Panacea? What is Panacea? Panacea is the cure for all ills. Okay. Panacea, something that will solve all the problems of a particular situation. So music is a cure for all ills. And the pronunciation Panacea. is panacea. Oh, Panacea. it is not panacea. I've always been pronouncing it panacea. It's panacea. What is it? Panacea. 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 So it's panacea, something that will solve all the problems of a particular situation. There is no single panacea for the problem of unemployment. It's panacea. Oh, okay. Panacea. Oh, wow. That's it. So music, the panacea, that means it's a cure for all ills. Now we'll go straight to the questions. Okay. First set of questions is which paragraph has the following information. We'll leave these questions to the end. Second set of questions is summary completion, and the third set of questions is true, false, not given. Now we'll come to the summary completion. During the experiment conducted by Francis Rocher, subjects were exposed to a music for a dash period of time before they were tested. For a dash period of time before they were tested. Okay, ये हमारा keyword है. Experiment Francis Rocher. Okay, and period of time. चलो, let's go and see Francis Rocher कहाँ पे है. B paragraph first line. B paragraph ma'am, first line. Francis Rocher. ठीक है. Experiment भी आ गया. ठीक है. He indicated that a 10-minute dose of Mozart, इसकी pronunciation है Mozart, could temporarily boost intelligence. Groups of students were given intelligent tests after listening to silence, relaxation tapes, or Mozart sonata for 2 pianos in D major for a short time, for a dash period of time. भी आ गया और time भी आ गया. क्या आएगा blank में? Short. Short is the answer. For a short period of time. Okay. Then we go to next summary completion. Before they were tested. And Rocher believes the enhancement in their performance is related to the dash nature of Mozart's music. Enhancement in their performance. उनकी performance में जो बढ़ोतरी हुई है, it is related to the dash nature of Mozart's music. वहीं पे होगा B में ही answer. Non-repetitive, madam. Non-repetitive. Okay. What is the nature? Complex. I think complex, ma'am. Complex ma'am. Complex nature. Complex non-repetitive music. वैसे मेरे हिसाब से इन्होंने 2 adjectives दे दिया म्यूजिक को. तो एक तो उसकी नेचर कॉम्प्लेक्स है, दूसरा नेचर उसकी कॉम्प्लेक्स है और रेपिटेटिव नहीं है, वो नॉन रेपिटेटिव है. तो मेरे मन में भी ये आया था कि नॉन रेपिटेटिव भी यहाँ पे आंसर होना चाहिए. आंसर इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया है. सो द ओनली लॉजिक बिहाइंड इज कि वो जो नेचर है दैट इज कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट इजी. एंड नॉन रेपिटेटिव है मतलब वो उसकी नेचर नहीं है पर वो रिपीट नहीं हो रहा. मतलब जो डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स है पर रिपीट नहीं हो रहा, तो नेचर उसकी क्या है? कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स इज द आंसर. राइट. नॉन रेपिटेटिव किसने बोला था? मैम मैंने, अभिषेक ने. अभिषेक, मेरे मन में भी ये आया था क्वेरी. नॉन रेपिटेटिव भी आना चाहिए, बट नॉन रेपिटेटिव इज नॉट इट्स क्वालिटी, इट्स नेचर. ओके. ओके मैम. नेचर इज कॉम्प्लेक्स, इजी कॉम्प्लेक्स जो भी है, दैट इज द नेचर. ओके. Then Okay, next we come over to the next blank. Later, a similar experiment was also repeated on dash. Ma'am, C paragraph first line. It was repeated on rats. Rats. So ये आपको ये just look at these questions and tell me
whether these questions were going to take you actual 1.5 minutes per question or less. Less. मैम लेस Ma'am, less. हाँ, तो ये 4.5 मिनट के 3 क्वेश्चंस थे। ये 4.5 मिनट में से कम आप 1 या 1.5 मिनट तो बचाओगे ना बाकी क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम देने के लिए। Yes, ma'am. या सो यू मस्ट ट्राई टू, जो भी आपको इजी लगे ना रीडिंग में, उसको अपना फोर्टे बनाओ। फोर्टे, FORTE, फोर्टे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। प्रैक्टिस दैट ऑल्सो, ताकि वो आपका फोर्टे बना रहे और उसमें आपको जल्दी टाइम आपका बचे, और जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसके लिए टाइम बच जाए। बिकॉज MCQs डिफिकल्ट होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ओके, कई बार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी थोड़ा सोचना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उन क्वेश्चंस के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे हर रीडिंग में जो आपका टाइम बचाएंगे। सो यू मस्ट लर्न टू डू दैट। कर लगी है Okay, now we come over to the next set of questions, that is true false not given. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have a doubt in the 6th question. Ma'am, एक और जगह लिखा हुआ है that जो experiment की duration थी, that was a 10-minute experiment in paragraph B. हाँ, Second line. हाँ, वो You मैं can't for write a 10-minute period of time. Yes, For ma'am. a 10-minute period of time हम कभी बोलते हैं ऐसे? Okay, ma'am. For 10 minutes बोल सकते हैं ना? Okay, ma'am. So short आया. हाँ, तो शॉर्ट आएगा। ये भी मेरे मन में आया था क्वेरी कि किसी ने किसी को बोला नहीं, तो मैंने भी यही किया था मैडम। हाँ, मैंने भी 10 मिनट ही किया था। हाँ, फॉर ए 10-minute पीरियड ऑफ टाइम मेरे मन में भी आया था कि ये भी बच्चों, किसी ना किसी बच्चे की जरूर ये क्वेरी होगी। आज जब मैं कर रही थी सुबह रीडिंग, तो मेरे मन में ये क्वेरी आई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैंने तो बिना आंसर्स देखे किया, मेरे मन में भी फॉर ए 10 मिनट आया, पर फिर मेरे को शॉर्ट वर्ड मिला, तो मेरे को लगा कि वो फॉर 10 मिनट्स बोलेंगे ना, हम फॉर ए 10-minute पीरियड ऑफ टाइम कभी नहीं बोलेंगे, तो वहां पे शॉर्ट ज्यादा बेटर लग रहा था। यस मैम, सेंटेंस नहीं बन रहा था वो प्रॉपर। सेंटेंस नहीं बन रहा था। अब ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में all kinds of music can enhance one's brain performance to somewhat extent. हर तरह का म्यूजिक किसी की ब्रेन की परफॉर्मेंस को कुछ हद तक एनहांस कर सकता है, एनहांस बढ़ा सकता है। ठीक है, सो लेट अस सी ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक की कहां बात हुई है। मैम आई ब्रेन थिंक की ये पैराग्राफ में ही है कि ब्रेन की उस पे देखा गया इन्होंने, ब्रेन की जो एक्चुअली द क्वेश्चन इज दैट ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक कैन एनहांस वंस ब्रेन परफॉर्मेंस। हमने पहले ये देखा कि ब्रेन परफॉर्मेंस की बात इसी में हुई है। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, दैट इज द परफॉर्मेंस। तो इन्होंने बताया कि 3 ये एक्सपेरिमेंट अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट में क्या करा, स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। एक को साइलेंस बिल्कुल दी, उनको कुछ नहीं दिया। दूसरों को रिलैक्सेशन म्यूजिक दिया। तीसरों को मोज़ार्ट्स का सोनाटा फॉर 2 पियानोज इन डी मेजर ये वाला सुनाया। ओके, अब साइलेंस वालों का एवरेज आईक्यू स्कोर 110 था, पर रिलैक्सेशन टेप्स के बाद भी 1 पॉइंट बढ़ गया, 111 हो गया। पर मोज़ार्ट का म्यूजिक सुन के 119 हो गया। तो हर तरह का म्यूजिक सुन के थोड़ा टू समवट एक्सटेंड तो बढ़ता है ना ब्रेन की एक्टिविटी, साइलेंस वालों से ज्यादा है ना बाकियों की। तो आंसर क्या होना चाहिए? Yes, true. ट्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। There is no neural connection made when a baby is born. Baby is born की बात ढूंढनी है आपने क्विकली। बेबी कहाँ पे, कौन से पैराग्राफ में है? डी में। डी में है, हाँ। आज डी में मैम लास्ट लाइन। When a baby is born, ये डी के ना 2 पैरे हैं, डी सेक्शन के 2 पैरे हैं। सेकंड पैरे की पहली लाइन है when a baby is born certain connections have already been made, और क्वेश्चन कह रहा है there is no neural connection made when a baby is born। तो आंसर क्या होना चाहिए? False मैम, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, false। ठीक है मैम, इसमें तो हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग के लिए बोल रहा है ना, न्यूरल का तो इसने कहीं बताया नहीं। अरे बिल्कुल मैम, आप उन्होंने बताया हुआ है, थोड़ा सा आगे सेकंड जाके लाइन में बताया है उन्होंने, एज न्यू इंफॉर्मेशन इज लर्न्ड एंड मोटर स्किल डेवलप न्यू न्यूरल कनेक्शंस आर फॉर्म। हाँ, तो ये कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, देखो पहला पैरा भी कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स पे एंड हो रहा है, और यहाँ सिर्फ कनेक्शंस वर्ड यूज कर रहा है, तो वो न्यूरल कनेक्शंस ही है।
समझ आया? जब ऊपर के पैरे को एंड है न्यूरल कनेक्शंस पे, ये कनेक्शंस है, तो कनेक्शंस कौन से की बात हो सकती है? न्यूरल कनेक्शंस की। और न्यूरल कनेक्शंस ही है ना जो हार्ट बीट और ब्रीदिंग को लीड करते हैं। ये न्यूरल कनेक्शंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके। हाँ मैम जो आल काइंड वाला था ना, आल काइंड वाला अभी जो किया हाँ, हमने आई नंबर, हाँ। मैंने ये ऊपर वाली लाइन से ही इसको ड्रू किया था। इसमें डिस्पाइट इट्स टाइप लिखा है ना, तो मैंने इसको पढ़ के मतलब इसी वाली लास्ट 2 लाइंस को, तो मैंने इसको ट्रू किया था, यहाँ से किया था हाँ मैंने। हाँ, चलो कहीं से भी कराओ है, ठीक है? डिस्पाइट इट्स टाइप ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक। हाँ, यहाँ से ज्यादा बेटर है आंसर। मैंने वैसे वहां से करा है, पर यहाँ से ज्यादा बेटर मिल रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई आंसर श्योर शॉट ट्रू है या फॉल्स है ना, वो आपको हर जगह कहीं से भी आप ढूंढोगे उसका आंसर आपको ट्रू मिलेगा। यस मैम। Because it is true, okay? Because it is true according to the passage. There may be more than one place from where you can find the exact answer. ठीक है? Okay. और जो नेक्स्ट का जो हमने किया फॉल्स, वो भी मैंने इसके साथ ही कनेक्ट करके नेक्स्ट लाइन से बेबी वाला था उसको अच्छा, फॉल्स किया था। ठीक है, चलो कहीं से भी करा है, it doesn't matter. Next is there are very few who question the Mozart effect. बहुत कम है जो Mozart effect को क्वेश्चन करते हैं, मतलब ज्यादा लोग इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन करना मींस इसको डाउट करना, ठीक है? अब there are very few who question the Mozart effect. F पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो। If you are a little skeptical about the claims, अगर आप skeptical हो about the claims, if you are skeptical about the claims, then what happens? Made by supporters of the Mozart effect, you are not alone. Okay? तो इसका मतलब आप अकेले नहीं हो, और आप अकेले नहीं हो, skeptical और हैं। लोगों ने भी किया है यस क्वेश्चन हाँ, इसको। हाँ, और यहाँ कह रहे हैं कि देयर आर वेरी फ्यू जो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ यस आगे लिखा है मेनी पीपल, तो ये वेरी, यू आर नॉट अलोन, बहुत से लोग जो है इसको डिफरेंट चीज से रिलेट करते हैं। accredit the advanced learning to other personality traits such as motivation, वो कहते हैं म्यूजिक नहीं और traits है such as motivation, persistence है, which are required in all types of learning. वो क्वेश्चन करते हैं many people, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गया? फॉल्स यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एनीबॉडी? यस मैम, अगेन रिपीट कर दो मैम। मैंने क्वेश्चन कह रहा है देयर आर वेरी फ्यू हु क्वेश्चन द मोज़ार्ट इफेक्ट, जो बहुत कम है जो मोज़ार्ट इफेक्ट को नहीं मानते, क्वेश्चन करते हैं। और ये स्टेटमेंट कह रही है अगर आप स्केप्टिकल हो, अगर आप मोज़ार्ट इफेक्ट के क्लेम्स के बारे में डाउट कर रहे हो, मतलब आप उसको नहीं मान रहे हो, आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग आपके हैं साथ। मैनी पीपल जाकर के बहुत ज्यादा, उसमें था फ्यू पीपल। हाँ, अ फ्यू है वहां पे करके ना, फ्यू करके उसको थोड़ा सा मानकर ट्रू कर दिया। आगे there are very few who question, बहुत कम है, और यहाँ आगे लिखा है many people, कह रहे हैं कि एडवांस लर्निंग और चीजों से है। ओके, वो कह रहे हैं म्यूजिक से नहीं है, उनकी और भी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उनमें मोटिवेशन है, उनमें परसिस्टेंस है, म्यूजिक को सारा क्रेडिट मत दो, ठीक है? हाँ, तो ये आंसर फॉल्स हो गया। अगला है माइकल लिंटन कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन मोज़ार्ट्स लाइफ। माइकल लिंटन ने उसकी मोज़ार्ट की जिंदगी पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी, कहीं नहीं दिया हुआ रिसर्च के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज नॉट इनफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द मोज़ार्ट इफेक्ट टुडे। बहुत नॉट इनफ, लास्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, देयर इज नॉट इनफ, लास्ट में, हाँ लास्ट, बिल्कुल लास्ट ऑफ द पैसेज यह है, actual improvements in learning and memory have not been adequately demonstrated. ठीक है, if we approach this controversy from a scientific, although there has been some evidence that music does increase brain activity, actual improvements in learning and memory have not been adequately demonstrated. Question कह रहा है there is not enough evidence, not adequately demonstrated. तो क्या हो गया? True मैम। True हो गया, true हो गया, ठीक है? अब हम आएंगे, yes मैंने कंसिडर किया जी पैरा में लास्ट लाइन। ओके, Linton raises an interesting point. If the Mozart effect causes such significant changes,
Why isn't there more document? क्यों नहीं है डॉक्यूमेंट यहाँ पे? वो भी नहीं है, तो यहाँ से भी आंसर आपका ट्रू ही आएगा ना। यस मैम, मैंने यहीं से लगाया है। यहाँ मैंने से ये भी है। कैसे हाँ, यस मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, मैंने कहा था अगर कोई आंसर Yeah. ट्रू है ना, वो आपको जगह जगह से कहीं भी true मिल का सकता है। मिल यस, सकेगा। ओके, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम कौन से पैरे में कौन सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहले पढ़ के देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आपको कहाँ मिलने वाला है ये चीज। सबसे पहला, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ म्यूजिक अफेक्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। मैम ये तो ये बी की बात की है यहाँ पर, यहाँ बेबीज की बात डी में, करी है ना। डी में। हाँ, yes, हाँ, तो वही है डी पैराग्राफ। वेरी गुड। फिर दूसरा है पब्लिक फर्स्ट रिएक्शन टू द डिस्कवरी ऑफ मोज़ार्ट इफेक्ट। पब्लिक का सबसे पहला रिएक्शन ये हमें देखना पड़ेगा, पब्लिक का रिएक्शन टू द डिस्कवरी ऑफ मोज़ार्ट इफेक्ट। जी मैम जी डी पैराग्राफ में है, डी पैराग्राफ में है, आफ्टर द मोज़ार्ट इफेक्ट वाज पब्लिश्ड टू द पब्लिक। तो पब्लिक को जब पहली बार पब्लिश हुआ आप मोज़ार्ट इफेक्ट, द सेल्स ऑफ मोज़ार्ट स्टेड ऑन द टॉप ऑफ द हिट लिस्ट फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्ते तक मोज़ार्ट की सेल टॉप पे रही। तो पब्लिक का रिएक्शन यहाँ पे है ना, जी में, जी आप yes मैम। ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉशर्स ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, आपको अब पता है, देखना भी नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बच गया। रॉशर का एक्सपेरिमेंट हमने एक आंसर पढ़ा था बी पैरे में, बी में ठीक है, वो बी में है। सो आंसर फटाफट आपको 10 सेकेंड में हो जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजिंग म्यूजिक फॉर हीलिंग इन अदर कंट्रीज। अब म्यूजिक को हीलिंग की तरह यूज कर रहे हैं, ये ए पैराग्राफ में है। उसमें जापान की बात हुई है, फीलिंग का फर्स्ट टाइम। हाँ, लास्ट लाइंस में भी है, लास्ट लाइंस में सारा अमेरिका, पेरिस, हाँ, सब जगह और भी बड़ी कंट्रीज की मैम, बात हुई है। हाँ, वेस्टर्न मेडिसिन की बात हुई है। थर्ड का क्या आंसर है मैम? थर्ड का आंसर है तो उसकी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट क्या था, रॉशर का एक्सपेरिमेंट। एक ही तो है उसमें, ठीक है, एक ही, ये बी पैराग्राफ में ही है उसका। फिर दोबारा रिपीट हुआ है ना, ओरिजिनल तो बी में ही है ना। यस, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स पे किया था। हाँ हाँ। yes मैम। उसके बाद है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अदर क्वालिटीज नीडेड इन ऑल लर्निंग। अभी आपने ये भी पढ़ा था अदर। yes मैम, एफ में। हाँ, वेरी गुड। अब आपने अगर पहले क्वेश्चंस पहले कर लिए ना बाकी के, तो विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर आपके 5 क्वेश्चन है, आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो एकदम पढ़े बिना पता होंगे कहाँ पे है, उससे आपका टाइम बचेगा। इन क्वेश्चंस को एंड पे छोड़ने का ये फायदा है। मैम मैंने इसमें ई कंसीडर किया हुआ है। मैम फिफ्थ का थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे हुआ? किसका? फिफ्थ का फिफ्थ का ना, अदर क्वालिटीज नीडेड इन ऑल लर्निंग हमने कहा था, उन्होंने बोला है, ये देखो, ये एफ पैराग्राफ में है, ये देखो। Many people accredit the advanced learning of some children who take music lessons to other personality traits such as motivation and persistence, which are required in all types of learning. यहाँ पे है, समझ आ गया? आपने कहाँ से करा इसका आंसर? मैम ई में सेकंड लाइन। ई में सेकंड लाइन? हाँ जी। Although some of these circuits are formed for physical skills needed to play, and it's just listening to music strengthens connections used in hand. तो other traits कहाँ लिखी है? म्यूजिक के अलावा और कौन सी क्वालिटीज है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अदर क्वालिटीज नीडेड लर्निंग। ਉਹਦੀ ਨੋ ਦੇ ਆਇਆ मैम अदर लर्निंग की बात, इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात तो एफ में ही हुई है ना, और क्वालिटीज है परसिस्टेंस, मोटिवेशन, तो यहाँ पे आंसर। ठीक है, जब आप कोई और आंसर अभी कर रहे थे तब भी आपने ये वाला हिस्सा पढ़ा था। ठीक है मैम, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? श्योर श्योर, गो अहेड। मैम इनमें मैच द फॉलोइंग में एक तो इट वाज काफी टाइम टेकिंग टास्क रहता है और गलतियां भी काफी होती है, तो मैम क्या चीजों का मतलब मेन फोकस है? मैच द फॉलोइंग जो सेंटेंस है, नहीं मैम यही जो पैराग्राफ जो भी आपको फाइंड द पैराग्राफ। अच्छा, which paragraph contains the following information? वो तो राइट। बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, ये टाइम लेता है, इसीलिए तो मैंने आपको कहा है ये वाले क्वेश्चंस को एंड पे छोड़ो। जब आप बाकी क्वेश्चंस करते हो ना, देखो अगर आप इनको पहले करने लग जाओगे ना, आपके पास 7.5 मिनट है, आप 10 मिनट लगा दोगे, और फिर पता है क्या होगा? पैनिक बटन विल स्विच ऑन
एंड देन व्हाट विल हैपन, आपको बाकी जो इजीली मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इनको एंड पे छोड़ो, बाकी आंसर पहले करो। जब आप बाकी आंसर्स कर रहे हो, कर चुके हो, तब आपको कुछ, जैसे अभी हमें एक दो पैरास पता थे, अच्छा ये वहां है, हमने सिर्फ जिक्र देखना है कहाँ हुआ है किसी चीज का, इतना डेप्थ में नहीं जाना। मतलब मैम पहले पूरा एग्जाम कर लें फिर सबसे लास्ट में देखें, हाँ, या मतलब पूरा एग्जाम नहीं, पूरा एक पैसेज पहले कर लो फिर लास्ट में करो, नॉट पूरा एग्जाम। 3 फिर तो आप भूल जाओगे उस पैसेज में क्या करा है। पहले पैसेज के बाकी क्वेश्चंस करके लास्ट में ये पैसेज के ये क्वेश्चंस करो। मैम ये ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चंस हैं हाँ। कैटेगरी है, इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? क्योंकि मेरा मेजर कंसर्न इसी में रहता है। हाँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ना इंद्रुप की बहुत अच्छी 1 या 2 वीडियोस हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी आज, वो आप गो थ्रू करना। मेरे को बहुत ग्रुप में डाल देना, दोनों ग्रुप्स में। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, ये वो ना, वो कई बच्चों ने यूट्यूब पे बोला कि बहुत अच्छे से, मतलब कोर तक ही हैज गॉन, एंड आफ्टर यू वॉच दोस वीडियोस आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। मैम मैंने भी सर की वीडियो देखी थी, तब मेरे ट्रू फॉल्स ठीक होने शुरू हुए, बहुत क्लियर हो गया आपको उससे। अभी प्रूफ मिल गया कि वो वीडियो बहुत अच्छा है। मैम मेरे गलत नहीं होते, एक आधा गलत होता है, बाकी ठीक हो जाते हैं, और मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी अब ठीक होती है। हाँ, वो एक्चुअली वो बड़ा साइंटिफिकली एंड लॉजिकली पढ़ा पाता है कि इसको अच्छा, इसको ऐसे करना है। जस्ट मैम जैसे वो बताते हैं ना कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसको सोचो कि फॉल्स कैसे होगा, ये उससे मेरा क्लियर हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट ही सेज कि पहले हर क्वेश्चन को ना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह, मतलब हर इवन एमसीक्यूज को वो कहता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह सोच के करो, आपको मिल जाएगा आंसर। यस मैम, लॉजिक बहुत काम करता है। हाँ, लॉजिक मैम और भी अगर कोई रीडिंग के वीडियोस हो इस तरह के तो बताइएगा, 4th को एग्जाम है। हाँ ठीक है, उसके वो आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का देख लो। एक मैंने पैराग्राफ हेडिंग्स का बनाया, पर वो आपने मेरा अटेंड कर ही लिया मेथड, तो वो भी है पुराना एक वीडियो। पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन जो इंद्रुप ने कराया ना, उनमें उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कैसे करना है। आई फील सो प्राउड व्हेन ही गेट्स सच गुड कमेंट्स फ्रॉम अदर्स। मैम जो वीडियो है ना उसको ग्रुप में शेयर कर देना मैम। बिल्कुल 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 करूंगी, ठीक है। अंजू आपने कोई वीडियो देखा जो मैंने कल आपसे शेयर करा था? यस मैम। आपको पता चल गया आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे राइटिंग में? यस मैम। हैं? यस मैम। हाँ बिल्कुल, और आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको शौक लगता होगा ना जब पहले वाले बैंड्स आप अपने देखते होगे। यस मैम। हाँ, वो अब आपको समझ आ गया कि उसको आपने कैसे करना है, ठीक है। यस मैम। हाँ, दैट इज इट। चलो अब आई विल कम बैक विद टुडे वी हैव टू डू द स्केलेटन ऑफ व्हिच एसे? डिस्कस ऐसे। आज डिस्कस ऐसे का स्केलेटन करेंगे, ठीक है। और डिस्कस ऐसे का स्केलेटन लास्ट हो जाएगा, फिर सारे स्केलेटन्स आपके रेडी हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से ऐसे लिखना सीखना है तो सारे स्केलेटन्स की वीडियोस देख लो एक बार। वैसे तो पुराने मैंने जब पढ़ाया हुआ है, पिछले 1-1.25 साल से अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कई बार वही चीज दोबारा पढ़ाई है, जैसे हाउ टू हैंडल इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स, वो भी पुरानी एक क्लास में लिया हुआ है, उनमें भी यही बातें हैं ले दे के। इट्स बॉइल्स डाउन टू व्हाटएवर वी आर टीचिंग नाउ। पर ये अगर कुछ वीडियोस अगर आप थोड़े वीडियोस देख के करना चाहते हो ना, तो एक वो जो 15 सेंटेंसेस वाले वीडियोस कर लो, और एक ये सारे स्केलेटन्स वाले वीडियोस कर लो, बस। तो राइटिंग अपडेट हो जाएगी, दैट इज इट। So 15 sentences, how to write a discuss essay in 15 sentences, how to write an agree disagree essay in 15 sentences, how to write a this essay। तो ये पहले ना ये कितनी रातें जागता रहा और ये करता रहा, तो मैंने इसको सुबह बोलती थी उठ क्यों नहीं रहा, कहता मैं अभी सोया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं कहा पता नहीं क्या कर रहा है, तो मैं ना आई यूज्ड टू बी लाइक कि पता नहीं क्या कर रहा है ये। फिर व्हेन ही केम डाउन वन डे, मामा मैंने 15 सेंटेंसेस के बनाए पैटर्न्स। मैंने कहा अच्छा दिखा, मुझे लगा कि अच्छे हैं। फिर मुझे कहता आप इनके वीडियोस बनाओ। मैंने फिर वीडियोस बना के डाले, तो एवरीवन स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग देम, और वो काफी अच्छे हिट हुए वीडियोस। एंड मेनी स्टूडेंट्स सेड कि अब हमें रियलाइज हुआ है कि ऐसे लिखना है और बैंड आते हैं। और अभी हमारे रिसेंटली यू विल नोटिस आई हैव बीन शेयरिंग द रिजल्ट्स। Yes ma'am. Quite a few students are getting 7.5 in writing. एंड 7.5 इन राइटिंग अब बहुत ज्यादा आने लगे हैं। पहले हमारे 7 भी बड़ी मुश्किल से बहुत बच्चों के नहीं आते थे, क्योंकि पैटर्न नहीं था कोई फिक्स्ड। अब तो एक पैटर्न है, अगर बच्चा पिकअप कर लेता है तो उसको लिखना इजी हो जाता है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑल्सो, और सब कुछ फिर भी कुछ ना कुछ लिखाते हैं,
ठीक है, राइटिंग में नहीं कम बैंड जाएंगे सिंपल लिखने से, ये बात गारंटीड है। कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो कम जाने के चांसेस है। मैं हंसती होती हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स लिखो ना एग्जामिनर्स को समझ ही नहीं आता, फिर वो बैंड दैट इज इट। ठीक है, उनको समझाना है इजी इजी लिख के, ये लो समझ आ गया, फिर एग्जामिनर बोलेगा यस समझ आ गया, अब मैं बैंड दे देता हूँ। ठीक है, वो ये मैम कि जितना सिंपल लिखोगे उतना ही अच्छा है। उतना अच्छा है, बिकॉज यू कैन रीच योर वॉइस, you can read your voice. ठीक है? Yes. So it is 10:30 and we'll get back at 10:45 sharp. We'll start the class at 10:45. Okay, ma'am. That's just a template. ठीक है? Okay, ma'am. Skeleton. Okay. Okay. Bye. Bye.